थोड़ा जिहा अपना तारुफ इस हवाले नाल कि तुसीं ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਿਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਛੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਸ਼ਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਲ ਸਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਫਾਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਨਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਚਿੱਕੜ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦ ਆਇਆ ਰੂੜੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੂੜਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਦੇ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੰਚੀ ਲਈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਲੋਡ ਡਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਔਰਾਨੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੜੇ ਛੇਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਬਰਾਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਣੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਲਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕੋ ਪੈਸੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਐਕਸਟਰਾ ਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ 2 3 4 ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਇਨ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦਾ ਹਾਲਾਂ ਦਾ ਕਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਾਉਂ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਅਗਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਐਨਜੀਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚੇਂਜ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੇਧ ਅਸਰਤ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਮਤਲਬ ਮਦੀਨਾ ਸਿੱਧਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਫੋਕਲ ਪਰਸਨ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਦੀਨੇ ਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ 3 ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਸ਼ੀਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦੀਨਾ ਸਿੱਧਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਮੱਲੂ ਖੋਖਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਲਾਂਟ ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਗੰਦਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਦੀਨਾ ਸੈਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹਾਕੀ ਗਰਾਊਂਡ, ਇੱਕ ਵਾਕਿੰਗ ਟਰੈਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਬੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ, ਤਾਰ ਲਗਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 30 ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੋਦ ਮਦੀਨਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸੇ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮਦੀਨਾ ਸੈਦਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਬਕਾਇਦਾ ਟੀਮ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਮ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਵਰਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11 ਤੋਂ 12 ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਾ ਖਵਾਤੀਨ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਅਫਰਾਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। आज वॉलंटियर मेंबर मदीना सईदा वेलफेयर फाउंडेशन फाइनांस से जितने भी पैसे कलैक्शन होके आते हैं वो हाजी साहब को जमा होते हैं, इन्हों को लैके बैंक की डिपॉजिट कराना, बैंक चो कढ़ाना, लिया के प्रोफैसर साहब के तावन नाल बाकी भी वॉलंटियर जो मैंबर आ जान, सदर साहब आ जान, वो सैलरी फाइनेंस सेक्रेटरी फाइनेंस सेक्रेटरी अकाउंट होल्डर भी ज्वाइंट अकाउंट भी मेरा मेजर सरफराज साहब नाल, और सिलाई स्कूल का भी मैं फोकल पर्सन हाँ जी। सिलाई स्कूल कपड़े शपड़े भी जाके मैं हाजी साहब सदर साहब जाके ਬੰਦ ਸੀ गुजरा हमारे तुम कपड़ा बाय करके लिया तो लिया के पछिया देने वो सिलाई करके तो नो लॉस नो प्रॉफिट अभी अगे कर देते ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਇਹ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜੀ ਸਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਸੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ, तो अलहमदुलिल्लाह कि शुरू तो ना फाइनांस में बड़े अच्छे तरीके नाल मैनेज किया हुआ और हूँ कुछ दिनों तो ना मतलब बादशाह फाइनांस सैकटरी पाया तो मैं सीनियर नायब सदर हाँ। और फाइनांस के बारे थोड़ी ट्रांसपेरेंसी मैं अर्ज कर रहा कि असी रखे तरीका कर के चैक मैं ही जारी करना वा, ठीक है जी, साइनिंग पार्टी होने ठीक है। उस तो बाद जितने वो एक्सपेंसिस होते हैं वो बकायदा सारे वो एक्सपेंस वोचर और क्रेडिट जितना करके एट द एंड ऑफ द मंथ असी उसमें जो है ना वो फाइनलाइज करने और बैंक ना टैली करके वो करने। उस तो बाद हर 6 महीने बाद असी ऑडिट कराने और ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है बकायदा वो रिपोर्ट जी नैट के शाया कर दी जाती है। और अलहमदुलिल्लाह अभी तक जो है हमारे जो है ना यानी 1 रुपये के बिना वो जिसकी करेंसी नहीं निकलेगा जा रहे हैं। तो बाकी है कि अल्हम्दुलिल्लाह एज फैक्टर में अभी 69 ईयर इन प्रोग्रेस है। तो चांसेस तो बड़े थे, मैं सेंट्रल पंजाब यूनिवर्सिटी में तो पढ़ाता था तो विजिटिंग, लेकिन मैंने इसको खैर बात कर दिया। मैंने कहा सारी ज़िंदगी जो है ना वापस ज़ाहिर के लिए कमाया, अब ये खल करिए। तो हम लगे हुए हैं, हम रेडी कर रहे हैं काम और दिल की थोड़ा गहराई से कर रहे हैं इस फाउंडेशन को चलाने के लिए। और जितनी टीम वर्क हमारी है कि फीस फिल्ला है और जितने आपने प्रोजेक्ट सुने हैं, अब इसके अलावा हम हेल्थ एंड सैनिटेशन को देखते हुए मैं साल में तकरीबन 3 बार हम मॉस्कीटो और मक्खी का ये ना स्प्रे कराते हैं, ठीक है जी, एंटी है ना। और अब देखा सफाई हो रही है, रोशन मदीना प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे, हर गलियों चौक में बल्ब लगाए हैं, उनको दिया है। और नला सफाई हो रही है, डेली कनेक्शन हो रही है, ग्राउंड हमारे बाद हो गए हैं। उसके अलावा हमने सिलाई स्कूल चलाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, फिल्ट्रेशन प्लांट है, साफ पानी मिल रहा है, तो कलेक्टिवली आप अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये फाउंडेशन सक्सेसफुल जा रही है और लोगों का इस तरह इतमाद हो गया जिस तरह का अब्दुल सत्तार ईदी बार होता था। माशाल्लाह जबरदस्त माशाल्लाह। टीम वर्क जो है वो किसी और एनजीओ में हो और आप लोग जो सारे मुखलस हैं और जहाज के साथ कर रहे हैं, लालच नहीं है। तो दूसरा है कि ट्रांसपेरेंसी जितनी ज़्यादा आपकी होगी ना उतना ही लोग आप पे ऊपर इत्मीनान करेंगे। और फिर मज़े की बात यह है कि हमारी जितनी मीटिंग होती है और जितने गैदरिंग होती है उसमें जो चाय वगैरह पीते हैं हम कभी फाउंडेशन के कॉम्पिटिशन पीते हैं अपने पर्सनल से।
जब भी इधर से कोई हम त्यौहार आता है, ईद मिलादुन नबी आते हैं, मुहर्रम आता है, दिगर आता है, तो उसमें हम अपनी कलेक्शन करते हैं। मेम्बरान की कलेक्शन करने के बाद सबीले लगाते हैं और चाय वगैरह मिठाई वगैरह मांगते हैं, 5-5, 10 हज़ार जो इसमें तो भी हम देते हैं और खुद अपना अरेंज करते हैं। फाउंडेशन से एक पैसा भी जो है ना, ये मैं खुद इसको सर्टिफाई करता हूँ कि नहीं दिया जाता। और जिस दिन वहाँ पर मीटिंग हुई थी तो मुझे एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी चुना था। मेरा बैकग्राउंड आर्मी से भी, आर्मी एजुकेशन कोर में मैंने जॉब किया। तो मैंने वहाँ से एक ही बात कही थी, मैंने कहा जी ना खाएंगे ना खाने दूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अतुल मकदूर कोशिश की है कि हमने सीधे दिल से कि तो पैसा इसका 1 रुपया भी मिस यूज़ ना। तो यही वजह है कि हमारी ये कामयाबी, इसी वजह लोगों का एतमाद है लोगों पे, इसीलिए वो देते हैं। कोई काम करना नज़र आ रहा हो ना लोगों को कि भाई ये सोसाइटी कर रही है, तो लोग जो है हमारे सोसाइटी के जो है ना वो डोनर हैं, देते हैं, पैसे देते हैं। तो आप ऐलान भी करेंगे, आप जो भी पैसा दें, आप हमारा ऑडिट तो बोल के आप करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन के बगैर ही हमारी ये मजबूरी होती है कि हम ना साल बाद जो है वो ऑडिट रिपोर्ट आप लोग से होते हैं, तो वो आप ऑलरेडी पहले ही करवा रहे होते हैं। यही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है सोसाइटी को। आपको क्या था, हमारा आपको आया हर महीने ऑर्डर हमारा जी, मेरा नाम शहीदुल हसनैन है और मैं एज एन नायब सदर फाउंडेशन के साथ काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह। और मुफ्ती प्रोजेक्ट में जब तक नहीं होगा तो मैं इनके साथ जो है ना कोऑर्डिनेट करता हूँ सबके साथ। माशाल्लाह। जी सर। मेरा नाम सैयद मुनीर हुसैन शाह है, पाकिस्तान नेवी से रिटायर हूँ और फाउंडेशन में एज ए सुपरवाइज़र काम कर रहा हूँ। जितने वर्कर गार्बेज कलेक्शन वाले और सफाई वाले वो सारे मेरे अंडर हैं। हम हर घर से कचरा उठाते हैं और गांव की हर गली की सफाई कर रहे हैं। तकरीबन 7.1 टन जो है कचरा हम डेली कंज्यूम करते हैं और इसको हम फेंकते हैं। ये यूनिवर्सिटी रोड पे जो है ना डीसी साहब ने हमें जगह जो है लोकेट की हुई है, वहाँ पे हम इसको कचरे को डंप करते हैं। बल्कि गवर्नमेंट ने तो मैंने सुना है कि पिछले दिनों में पता नहीं जंग में या किसी जगह पे एक सेक्टरी लेवल पे ना इन्होंने कोई इनिशिएटिव लिया है कि भाई हर घर से कुछ ना कुछ कलेक्शन करके तो गांव की सतह पे हम ना ये गार्बेज का सिस्टम जो है ना इसको उठाएंगे और इसको डंपिंग करेंगे। तो ये मैं कहता हूँ कि आप लोगों की खुशकिस्मती है, तो काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन ये शायद ये आगे फिर एनजीओ को ही दे देंगे सारे प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट के काम है ना, वो गवर्नमेंट हमारे साथ ताउन बिल्कुल नहीं करता। मतलब ये सीवरेज सिस्टम नहीं है जो हमारी रोड के ऊपर इन्होंने बिछाया हुआ है नीचे। ये डीसी साहब को भी कहा 1-2 दफ़ा, साहब को कहा कि एक दफ़ा इसकी सफाई हो जाए, क्योंकि जब बारिश होती है ना तो फिर पानी जो है ना गलियों में जो है ना वो चला जाता है। चलो हम भी रजिस्ट्रेशन का आपका इंशाल्लाह ताला प्रोसेस मैं जल्दी कर दूंगा, जितनी वर्किंग डे के तो मैं बहुत बड़ा मुतासर हूँ। दो चीज़ें आपकी नोटिस बनाना चाहते हैं। सुपरवाइजर है और ये क्या शादी, ये हमारे सैयद साहब है, जी, ये हमारे सुपरवाइजर हैं। ये दोनों पेड सुपरवाइजर हैं। 20,000 रुपया हम रेडियम इनको देते हैं, 20,000 इनको देते ठीक है। हैं। ये सुपरवाइज करते हैं व्हीकल को और गार्बेज को और सैनिटरी वर्कर्स को, और वो हमारे जो है ना वो कलेक्शन करते हैं हर घर से। मिनिमम 400 रुपये हमने रखी हुई है। इसके अलावा ज़्यादा भी देते हैं और कुछ देते भी नहीं है और कुछ 100 रुपया दे देते हैं, लेकिन आपने झगड़ा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। 1600 घरों में से हमें तकरीबन 900 घर जो है ना वो पेमेंट करता है। सैनिटरी वर्कर जो है हमारे जो जो नाम इस काम को चला रहे हैं, मतलब सैनिटरी वर्कर है, 2 सुपरवाइजर ये पेड है, बाकी रेस्ट ऑफ ऑल दिस स्टाफ जो है ना हम लेंगे। जबरदस्त जबरदस्त। ये हमारे फोटोग्राफर हैं, ये हमारे जो है ये मीडिया को जो है ना जॉइंट सेक्रेटरी के मैं इनाम दे रहा हूँ। जो भी मेरे जिम्मा काम लगाते हैं इंशाल्लाह वो मैं इनको फायदा देता हूँ। और भी जो भी काम हमें वेलफेयर का जिधर भी नज़र आए, जो भी नज़र आए, हम तमन कोशिश यही होती है कि हम उसको जल्द अज जल्द जो है ना वो उसको पाए तकलीफ में पहुँचाएँ। कोई भी हमें वो जो है वो काम बताया जाए कि नहीं ये फाउंडेशन के हवाले से करना है, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि उसको जल्द से जल्द हम कर लें ताकि हमारा वो काम जो है ना वो रुके ना। अभी रात को भी एक तजवीज़ आई हमारे पास एक कि वो सर्दी आ गई है, तो इस हवाले से आप लोगों से रिक्वेस्ट करें कि जो मुस्तैक़ लोग हैं जिनके पास गर्म कपड़े नहीं हैं उनको कोशिश करके कहीं से भी वो गर्म कपड़े लेकर उनको फिर दिया जाए और दिलवाया जाए।
तो इस हवाले से भी हम काम अभी वर्क जारी है सेकंड इंशाल्लाह। हैंड है जो रेट करता है ना ये तो वो जो हमें दीवार बनाने पर लगा दिया जाए तो जो भी नीडी ये पर्सन हमारा सिस्टम है, ये कलेक्शन का जो हम कलेक्ट करते हैं, ये 200 300 400 जो भी, इस पे भी हम देते हैं। वो जो जिसका हमारे पास कंप्यूटर का रिकॉर्ड मौजूद है उसको इस पे देते हैं हम स्लिप ये निकाल के, ये मैसेज भी उसको चला जाता है उसको बंदे को जिसके नाम पे ये पर्ची कटेगी उसको मैसेज चला जाएगा, उसको ये मैसेज भी चला जाएगा। ये भी मैसेज आ गया मुझे। तो ये ये हमारे इनको मैसेज आ गया कि ये इन्होंने ये डोनेशन दे सेम दिया। वही इसके ऊपर प्रिंट के ऊपर भी है। डाटा में भी चला ये जाएगा। आपने बड़ा लेटेस्ट काम किया हुआ है। और ये सर जो हमारे आईटी एक्सपर्ट हैं वो कैनेडा में होते हैं, उनके पास भी सारा सिस्टम है, ये सारा जो है ना रिकॉर्ड उनके पास चला जाएगा। माशाल्लाह जबरदस्त, ये तो बड़ी और ये हम हर महीने का ना, इसलिए हमारे पास ये पड़ी हुई है। हम हर महीने के बाद जो ऑडिट होता है हमारा, जो कितने हमारे पास वो इकट्ठे हुए, वो हम उसको शीट को निकाल के फैक्ट्री बैठ के हमारा जो वो साथ हिसाब करते हैं हर महीने कि जी इतने पैसे आए हैं, इतना खर्चा हुआ है। वो बिल भी साथ लगाते हैं जो खर्चा होता है, जो आमदन आती है उसको हम ये कंप्यूटर पे कर लेते हैं और स्टेटमेंट निकाल के बैंक से उसके बाद टैली कर लेते हैं कि जी हमारा कोई फर्क तो नहीं आ रहा है इसमें कोई ये जो ऐप है ये हमारे इधर कजन है कनाडा में, ये जो ऐप चल रही है ना, मेरे कजन है वो इधर जो लड़का पहले काम कर रहा था उसने बोला था 1.5 लाख की बनती है, अच्छा। तो वो ये मुझे बनवा दें। तो मैंने अपने कजन है कनाडा में सैयद मुनव्वर शाह साहब, उनको बोला था तो वो कहते हैं मैं फ्री में बना देता हूँ आपको पैसे शैसे, वो उन्होंने बना के उधर अभी तक वो उस पर काम कर रहे हैं। अभी डीसी साहब ने एक बोला है कि हमें किसी गाँव के लिए बना के दें, तो वो अभी डीसी साहब के लिए एक ऐप बना रहे हैं, काम कर रहे हैं उस पर, तो वो भी उनको हमने गिफ्ट देना है डीसी साहब को ऐप का। ये रिकॉर्ड सब पड़ा हुआ है सारा, ये जो हमने अभी वो हमारी उसकी चाबी नहीं थी हमारे पास। नहीं वो देखते हैं, अंदाजा ही हो गया कि माशाल्लाह बड़ा ट्रांसपेरेंस काम है ये आपका। तो ये हर वर्कर की फाइल है, ये हर वर्कर की ये हमारे पास भी बनी हुई है। ये हमारे जो भी हम आजाद करते हैं, जो हमने जो के हिसाब से जब उसको प्रिंट आउट करके ना सारी फाइल बना के रख देते हैं। ये हमारे कलेक्शन 5 बंदे थे अपनी गाड़ी पे, तो उधर जो गरीब थे, मतलब जो अंदाज के हकदार थे, उनको हमने खुद मिल के उनको भैया हमने कोरोना है ना, तो कोरोना में तकरीबन हमने 50 लाख रुपए का जो सामान है ना घर घर पहुँचाया मदीने और कैश भी दिया और रात को दिया है, एक बंदे को दूसरे बंदे का नहीं। ये सब अब्रॉड में हैं जो बंदे, अक्सरियत ये उन्होंने पैसे में भेजे थे। माशाल्लाह हमारे मदीने की काफ़ी कम्युनिटी है ना जो वो अब्रॉड में है। हमने कैंप लगाया था इधर, तो हमें वो कैंप पे वो जब इकट्ठे होते हैं उसको अकाउंट में हमने जमा करवा के बैंक में, तो वहाँ से हमने निकाल के फिर उसको परचेज कर दिया। अच्छा, ये हमारे दोस्त है साबिक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, ये कुछ बोलना चाहते हैं। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रोफेसर रियाज गवर्नमेंट ज़मींदार कॉलेज से मैं रिटायर हुआ हूँ। ताल्लुक़ मेरा जो है वो रानीवाल सईदा से है। तो प्रोफेसर सैयद इम्तियाज़ अहमद मेरे बहुत अच्छे दोस्त और बड़े प्यारे कुलीग और लंबा अरसा हम साथ इकट्ठी सर्विस करते रहे हैं। मैं अपने आप को बड़ा लकी महसूस कर रहा हूँ कि आज मुझे मौका मिला है इन दोस्तों से इंटरेक्शन करके, मीटिंग अटेंड करके। मैं किसी प्लान से तो नहीं आया, बाई चांस आ गया। तो यहाँ पे जो बातें हुई हैं, जो जज्बा है साकिब साहब, जो आपका वर्क है वो देख के मैं बहुत मुतासिर हुआ। उसमें 2-3 पहलू सामने आए हैं। एक शाह साहब फरमा रहे थे कि ये काम तो गवर्नमेंट का है, हम कर रहे हैं। आज गवर्नमेंट का तस्वर बदल चुका है, हम गवर्नमेंट हैं। गवर्नमेंट जो है वो इट मीन्स के फॉर द पीपल। आज का दौर जो है ये अवामी गवर्नमेंट होते हैं, बल्कि आज की जमहूरियत की तारीफ भी ये है कि वेयर देयर इज़ नो गवर्नमेंट, लोग मुकम्मल आज़ाद हों और ख़ुद ऑर्गेनाइज हों और अपने काम करें। आप खुद इंसारी की तरफ आएँ और आपने ये खुद इंसारी का मुजाहरा किया है कि आप बल्दिया के डिपेंडेंट नहीं हैं, आप किसी डीसी के डिपेंडेंट नहीं हैं, आप किसी एसी का इंतजार नहीं कर रहे, दरखास्तें नहीं दे रहे, आप अपना काम खुद कर रहे हैं, आप अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं और ये आज़ादी की तरफ पहला कदम है। अगर आपने भरपूर ज़ात ज़िंदगी गुजारनी है तो आपके इस एरिया में ये बहुत बड़ी आबादी है, ये डिस्ट्रिक्ट गुजरात का बहुत बड़ा ये विलेज है और गुजरात के साथ टैग भी है। तो मैं समझता हूँ कि एक हॉस्पिटल और एक कॉलेज और ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, जिस तरह मॉडल टाउन लाहौर में उनका अपना निज़ाम है। आप यहाँ पे जिस तरह कैंट में वो गाड़ी चलती है, खरिया कैंट के अंदर आप जाए तो वो उनकी अपनी गाड़ी चलती है, प्राइवेट गाड़ियाँ नहीं चलती। तो ये 2-3 सिलसिले आप
ग्रेजुअली शुरू कर लें, आहिस्ता आहिस्ता उसको शुरू कर लें, बतदरीज उसको लेकर आगे चलें, तो ये आप एक इसको इंडिपेंडेंट स्टेट, एक इंडिपेंडेंट शेयर, एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी के तौर पे, जहाँ पे वाकई विल ऑफ द पीपल, जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं, लोगों की मर्जी, लोगों की मंशा पूरी हो, लोग आज़ाद हों, उनके ऊपर कोई हुकूमत ना कर रहा हो, वो खुद ऑर्गेनाइज होकर अपने काम निपटा रहे हो। तो ये बड़े आला शौर की बात है और ये तरक्की की तरफ बहुत बड़ा कदम है। आप एक ऐसा स्कूल या कॉलेज भी बना सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि गुजरात के अंदर बेशुमार प्राइवेट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट के कॉलेजेस भी हैं, यूनिवर्सिटी भी है। आज भी अगर कमी है तो वो किसी प्राइमरी स्कूल या एलिमेंट्री स्कूल की कमी है। वो स्कूल जो वाकई को कैडर तैयार करके दे, और वो स्कूल मुर्गी खाने ना हो कि कनाल में ये हमने बच्चे घुसेड़े हुए हैं, वो सीढ़ियों के नीचे भी क्लासें हैं और दफातर बने हुए हैं। वो स्कूल लाइक हो और उसके अंदर बाकायदा ट्रेनिंग हो, जो बच्चा बाहर पढ़ के निकले, लोग उसके लिए मुंतज़िर हों कि ये बच्चा हमारे कॉलेज को मिल जाए। ऐसे स्कूल पाकिस्तान में, मिसाली स्कूल जो है वो मुजफ्फरगढ़ में मौजूद है। वहाँ पे कोई पैंट शर्ट नहीं है, वो मलेशिया का ड्रेस अप करता है, मलेशिया के कपड़े बनाता है, और वो पेस्ट या ब्रश नहीं करने देता, वो मसवाक कहता है करें, 5 टाइम नमाज पढ़ाता है। उस स्कूल को आप विज़िट कर लें, उस स्कूल का कोई बच्चा भी किसी कर्नल जनरल से, किसी डॉक्टर से, इंजीनियर से कम नहीं है। तमाम बच्चों के दाखिले जो हैं, एक बच्चा मैंने भेजा था, उसके 2-3 बहन भाई जो थे वो इंटर में जाके, मैट्रिक में जाके छोड़ गए। तो सब इंजीनियर थे, मेरे दोस्त कहने लगे यार ये बच्चे पढ़ते नहीं हैं। मैंने कहा इसको मिसाली स्कूल छोड़ा, वो 4th क्लास में मिसाली स्कूल छोड़ा है, और 3 साल वहाँ पढ़ने के बाद 8वीं में उस बच्चे का वो बतौर पायलट PF सरगोदा में सेलेक्ट हो गया। आजकल वो F-16 का पायलट है, यानी जिसके दूसरे बहन भाई वसाइल होते हुए नहीं पढ़ सके। अगर आप कोई ऐसा इंस्टीट्यूट, एक अदारा भी कायम कर देना, तो मैं समझता हूँ यहाँ से लोग ज़िले भर के लोग दाखिले के लिए आपको हॉस्टल बनाना पड़ गया, लेकिन उसको एक सिस्टम के तहत चलाएं जिसके मकसद एक कैडर की तैयारी हो, एक नस्ल की तैयारी हो। जो स्कूल बनते हैं, सर सैयद का कॉलेज आज भी यूनिवर्सिटी की सूरत में चल रहा है। तो अगर आपको अदारा भी बनाए, अपना हॉस्पिटल भी बनाए जहाँ पे लोगों को वाकई ट्रीटमेंट मिले, और यकीन करें कि जिसकी कॉस्ट 10-15 हज़ार रुपये खर्च आती है ना टोटल सिजेरियन की, C सेक्शन की, ये बच्चे की पैदाइश पे, उसका ये आपसे लाख रुपए वसूल कर रहे हैं। तो एक ऑपरेशन थिएटर आप लोगों के लिए जिस तरह आप ऑर्गेनाइज हुए हैं, वो क्या मानी रखता है? कोई मानी नहीं रखते। लेकिन ये स्टेप वाइज आप अपने प्लान में शुरू कर लें कि हमने स्कूल बनाना है, हमने इधर चलने वाली है ट्रांसपोर्ट एक बनानी है जो शटल सर्विस में चलती रहे, लोग आते जाते बैठते रहे। जिस तरह वो लाहौर में अर्बन ट्रक चलती है ना, या आपके एरिया में आपके लोग शहर भी जाना है तो उसमें सवार हो जाए, उसका पास बनाना है तो पास बना लें। तो आप अपने प्रोजेक्ट में ये चीज़ें एनलिस्ट कर लें और उसको स्टेप वाइज, किसको पहले लेना है, किसको बाद में लेना है। तो स्कूल ऐसा होना चाहिए कि लोग दाखिले के लिए बच्चे की पैदाइश से पहले आपके पास बुकिंग के लिए आ जाए। उनको पता हो कि प्राइमरी में यहाँ से निकला हुआ बच्चा वो क्या जानता है, उसने कायद के बारे में क्या पढ़ना है, अली के बारे में क्या पढ़ना है, जफर अली खान के बारे में क्या पढ़ना है, नवाब जंग के बारे में क्या पढ़ना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको प्राइमरी लेवल पे वेल इक्विप्ड करके निकाले, वो कहीं दुनिया में नाकाम नहीं होगा। ये जो कुछ हम कछुए और खरगोश की कहानी पढ़ा रहे हैं ना कभी कछुआ भाग गया उसके साथ, ना कभी खरगोश भाग गया, वो प्रैक्टिकली नहीं है। आप बच्चों को यहाँ पे एक प्रैक्टिकल फॉर्म की शक्ल का एक अदारा दें ताकि वो परफेक्ट किस्म की शख्सियात जो है वो आगे बढ़े। और दूसरी तरफ मैं ये इनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि सोशल वेलफेयर एक तो आपकी गवर्नमेंट की ड्यूटी है और साइन हुई है। आप भी अगर लोगों में मुख्तलिफ देहात में, बड़े देहात में जाकर रब्ता करके उनको कलेक्ट करके आप अपनी विजिट भी करें, एंजॉय भी करें, देखें भी, अगर आप भी लोगों को ये अवेयरनेस दें तो रहती दुनिया तक इंशाअल्लाह जी लोग आपको याद करेंगे। कोई शख्स आया था, वो सोसाइटी को ऑर्गेनाइज कर गया और बता गया कि सोशल वेलफेयर क्या होती है, और आपने समाजी तौर पर, माशी तौर पर किस तरह आज़ाद होना है, आपने कैसे डेमोक्रेट बनना है। बड़ी खुशी की बात हुई है कि आपने कहा कि हम फैसले जो है वो कसरत राय से करते हैं, कि कोई शख्स भी उसमें ये नहीं है कि ये सदर साहब ने कहा या सेक्रेटरी साहब ने या कैबिनेट ने फैसला कर लिया, बल्कि कोई आम शहरी भी वो सजेशन देता है तो उस पर और शुरू हो जाता है कि ये ज़्यादा बेहतर है, इसको पहले कर लें। आप ग्राउंड के लिए भागे थे, लोगों ने अपने मिसाइल का रोना रोया कि हमारी गलियाँ अटी पड़ी हैं और गंद पड़ा है और चला नहीं जाता, यहाँ से तो मस्जिदें उठा के कब्रिस्तान तक नहीं पहुँचा जाता।
आपने उसको टोटल चेंज करके वहाँ से आगाज़ कर दिया कि लोगों की डिमांड क्या है। और जब आपने लोगों की डिमांड की पूरी की तो लोगों ने आप पे ट्रस्ट किया। लोगों ने ब्लाइंडली बाहर बैठे हुए लोगों ने सिर्फ वीडियो देखकर आपको पैसे भेजने शुरू कर दिए और आपकी कामयाबी के साथ साथ लोगों ने इसमें शामिल होना शुरू कर दिया। बड़े सारे लोगों से मैंने जिक्र सुना है, कुछ गंदरे के लोग आपका जिक्र कर रहे थे कि हमने भी मदीने की तरफ से इस तरह हम काम हमने शुरू कर दिए। आज आप मलक होकर की मिसाल दे रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि ये जो अवेयरनेस है ना, आपके साथ ये रानीवाल सईदा है, ये मदीना है, ये मोमदीपुर है, आप चंद गाँव के लोगों को खुद बुलाकर दावत दें और आप भी ये काम करें शौक देने का भी बुनियादी काम शौक। आप में से किसी के जहन में भी ख्याल आया ना कि बच्चों के लिए ग्राउंड बनाएं। असल बेसिक चीज़ जो है थॉट होता है वो बहुत ताकतवर होता है। एक शख्स एक गांव में आप छोड़ आए जो पाउडर पीता है, वो 1 साल में आधे गांव को पाउडर पे लगा देगा और बेच भी लेगा। हालांकि वो बड़ा खतरनाक है, गवर्नमेंट भी मारती है, जान का भी खतरा है, बीवी बच्चे भी छोड़ जाते हैं, घर वाले भी छोड़ देते हैं। लेकिन वो अपने उस विच से, उस अपनी अकल से वो उसको फैला भी लेता है और जाल भी बुन लेता है। तो हम नेकी का काम क्यों नहीं बढ़ा सकते? आप इसको आगे भी बढ़ाएं। और ये मैं ये समझता हूँ कि ये सदात की जिम्मेदारी है कि वो वाम को आज़ाद कराएं, वाम की रहनुमाई करें, वाम की रहबरी करें, वाम को शऊर दें। सदात की वलायत इसलिए, वलायत इसी को कहते हैं कि वो पैगाम को आगे पहुँचाएँ। अगर आप नहीं पहुँचा सकते तो ये आपकी नाकामी है। पहला काम ये हिदायत देना, ये हिदायत है कि आप साफ सुथरे रहें। सफाई में सिर्फ ईमान है ना, तो हमारी गलियों में गुजरे तो आधे बेईमान तो हम पहले ही हैं कि मैं छिलके खा के आपके घर के सामने फेंक देता हूँ, गली मेरी बंद पड़ी है, लोग गुजर नहीं सकते, तो आधा मुसलमान तो मैं पहले ही नहीं रहा। हमें ये गौर करना चाहिए कि ये सबसे अहम फरीज़ा जो है जो आपके ज़ुम्मे है, सादात के ज़ुम्मे है। इसलिए दूसरे जो हैं वो इनका एहतराम करते हैं और इनके मौत कहते हैं, इनको जुज़्व ईमान समझते हैं सादात। क्योंकि इसको अगर हम बिलीफ न करें तो वी आर नॉट मुस्लिम, तो फॉलो फिर लोग आपको करेंगे, लोग एहतराम करेंगे, आपको किसी वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंशाअल्लाह लोग नंगे पाँव चले आएंगे। आप ये काम शुरू करें। मैं आपको दस्तारी दी की मिसाल देता हूँ कि वो इंडिया से हिजरत करके ये बामता गांव में आया था और बामता गांव में चंद माह ठहरने के बाद वो कराची चला गया। वहाँ हादसे का शिकार हुआ, पेट चाक हो गया, किसी ने वो पैसे छीनने के लिए, और वहाँ उसको लोग उठाकर हॉस्पिटल ले गए। इलाज हुआ, उसको होश आया कि मेरा तो कोई वाली नहीं, इलाज एक बुजुर्ग के पास बैठे हुए थे, उन्होंने पैसे भी खर्चे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप दे। और फिर उसने कहा कि नहीं मेरा तो ये काम है। उसने सारी जिंदगी का सबसे बड़ा आपको बताने लगा हूँ ये है कि हमारे में ना कोई मजहबी है और ना कोई सियासी, मतलब है हमारे कभी ताक नहीं है। हमने हमेशा जो किया है वो वेलफेयर के लिए, गैर सियासी और गैर जी जी नहीं वो नहीं हमने कभी, मतलब है वो फिर कोई। आप मेरा मफहूम कर सकते हैं। जी मैं समझ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप ऑर्गेनाइज होंगे तो सारा कुछ आपका है। मुझे और आपको कोई दुकान के सामने रेडी नहीं लगाने देता, जगह नहीं रखने देता। यदि जहाँ जी जाए वहाँ पे बांस खड़ा करता है और यदि ओम या यदि वो लिख लेता है, उसको कोई मना नहीं करता। सारा पाकिस्तान उसका है, हेलीकॉप्टर भी उसके है, लेकिन उसका नाम कुछ नहीं है। तो मैं भी ये कहता हूँ ये सब कुछ आपका होगा इंशाल्लाह। ये रियासत भी आपकी है, ये मुल्क भी आपका है। ये बड़ी अच्छी बातें की हैं। मैं और मैं कहता हूँ कि प्रोफेसर साहब के लिए क्रैपिंग होनी चाहिए। तो आप अपना एरिया ऑफ ऑपरेशन जो है हम इसको पूरे गुजरात तक हम इसकी रजिस्ट्रेशन करेंगे। और दूसरा ये है कि आप इसको मेन एक बॉडी बना लें, दूसरे गांव की सतह पे छोटी बॉडी बना लें, ठीक है, उसका पार्ट ही बनाएं। तो एक मर्कजी हैसियत से आप इसको ना एक मॉडल की हैसियत से इसको चलाएं और बाकी सारे जो है ना वो एक तरीक़ाकार के मुताबिक आपकी जो है ना वो मद्देनजर रखते हुए जो उसूल ज़ाब्ते क़वानीन है उसको आगे चलाएं और इसको ना एरिया पूरे गुजरात तक, बल्कि पहले अपने गाँव को मॉडल बनाएंगे, फिर हम साथ साथ जो गाँव है ना इसको भी हम इंशाअल्लाह। हमने ये गंदरा है इनको ये हमने प्लांट दे दिया अपने पैसों से, जो हमें डोनेशन आई है हमको वहाँ पर लगवा दिया। सिलाई स्कूल में हमारी ये बच्चियाँ सिलाई सीख रही थी, उस समय से 12 तो मशीनें हमने दी हैं, वो मदीने के नहीं, आउट ऑफ मदीना। ये सिर्फ सर्विसेज नहीं देता, जिस तरह ये प्रोफेसर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि ये साथ तरबियत भी करता है। जिस तरह डेमोक्रेटिक है सिस्टम है हमारा, तो ये भी एक मेजोरिटी के फैसले से असल जो चीज़ है हमारा अवेयरनेस है।
और साथ जो है ये आपको मतलब कि ये जो हमारी सर्विसेज हैं ये हमें मतलब वो मजबूत करती हैं थोड़ा सा कि ये सोसाइटी ये फलां काम कर रही है। साथ साथ हम लोगों की तरबियत भी है और लोगों को शऊर भी हमने लोगों ने देना है और साथ साथ जो है ये उनकी वर्किंग भी करवानी है। दो हमारे मेन ऑब्जेक्ट होते हैं, तो हम दोनों को साथ लेने हैं, किसी को हमने पीछे नहीं छोड़ना। सिर्फ काम करना मकसद नहीं होता, हेल्थ वाले बड़े काम कर रहे हैं, ये बल्दिया वाले भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो शहरी शऊर होता है ना, सिविक्स जिसे हम सिविलाइजेशन कहते हैं, हम Civic sense। सिविक सेंस और सोशलाइजेशन, ये हमारा जो है वो मेन मकसद होता है। तो हमने ये दोनों चीज़ें साथ साथ रखनी है। तो बड़ी खुशी हुई है प्रोफेसर साहब, मैं आपकी फिर उस सिलसिले में आप ये करना मतलब ये गंगा भी फाउंडेशन है, मैम का भी है, हमारी भी है, इस तरह आप विजिट करें। मैं इंशाल्लाह मैं गुजरात में मैं अपना दारा नहीं करवा सका। मैं ना वजीराबाद में 16-17 साल की है मैंने सर्विस, ठीक है, एज ए सोशल वेलफेयर ऑफिसर हूँ। अब जो है ना वो अपॉइंट हुआ उधर, ये आपके सिटी ऑफिस में पहली जॉब है मेरी एज ए ऑफिसर। पहले एज ए सुपरवाइजर मैंने काम किया है। तो मेरा ये ना एक मकसद था कि मैं एक गाँव को एक मिसाली शक्ल एक दूँ, पहले एक मॉडल बने, उसमें जो लोगों के खास तौर पे लड़ाई झगड़े के मसाइल हैं उसमें एक अमन कमेटी छोटी सी बना लें, विजिलेंस कमेटी एक छोटी सी हो जो उनके ऊपर नज़र रखे कि भाई ये फैसले जो है वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हम अपनी मस्जिदों को भी इसमें शामिल करें। इसमें अब वो कल्चर नहीं रहा कि हम एक दूसरे के ऊपर काफर और मुशरक और दूसरा कर रहे हैं, वो हम इससे बाहर निकल आए। एक दूसरे को एक हमारा एक मरकज हो जिसमें हम रिटायर्ड जो पर्सन है, जिस तरह की ये प्रोफेसर साहब है या हमारे ये जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं इधर मुनीर साहब हैं, ये सारे मिल के ना कुछ चंद एक कमेटियां बन जाएं गाँव की सतह पे। ये अमन कमेटी है, ये इंसाफ की कमेटी है, ये इकोनॉमिक कमेटी है, ठीक है, जो लोगों को रोजगार मुहैया करे, कर्जे दे और उनके बदले में थोड़ा बहुत उनसे ले, बदले से मुराद यह कि किस्तों की शक्ल में दे, फिर उनको जो है ना वापस जो है उनको इंडिपेंडेंट कर दे। तो ये चीज़ें जो है ना जिस तरह ये कह रहे हैं कि सेल्फ गवर्नेंस की तरफ हम आए। उसको मेरी हमारी वही थी दे देगी ये फ्रांस चक्का होता है एसएचओ जी सब राय में जब वो पे चला गया ये मैंने ना सुनी एक मैं तो बड़ी खुशी हुई है जनाब। तो इस पर हम आपकी मीटिंग जो है मैं तो कह रहा था कि एक अटेंडेंस लेने की मिसाली होती है हमारी, जो भी मीटिंग होती है उसकी अटेंडेंस जरूरी होती है, तो वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। अभी आप लिख लें सबके नाम वगैरह इसके लिए बताऊं क्या है कि ये फिर रोजगार जो चाहिए